This is our press conference, and we have with us the captains of the two teams, Pakistan team led by Fiza Fayaz, and the South African team led by Mika van Foster. Okay, and they'll be giving first their opening statement, followed by the questions from the press. Okay, thank you. Hello. Assalamualaikum. I'm very excited to begin this home series against South Africa. We have been preparing it for a long time. We are very excited, and I think it is a player. It is always special to play in front of our home crowd, and I feel like inshallah we'll give them a good time, and yeah, we're looking forward. So, and the confidence we gained from the Bangladesh series, sorry, yeah. Sorry. Yeah, that's it. Good afternoon. It's not on. Good afternoon. I'm Mika van Voorst, the South African under-19 captain. I think we as a team is very excited to be here and extremely excited to be hosted by the PCB. I think they've been excellent with all the preparations and making us feel home here in Pakistan. This is really important for us as a group for our preparation ahead of World Cup. We're looking to take a lot of confidence out of the series because of the subcontinent conditions and just enjoying it as a team. And I think both teams are going to learn a lot from this series. Now the floor is open to questions from the press. फिजा कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये सीरीज़ क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान वुमेंस टीम की परफॉर्मेंस रही और उनको काफ़ी गैप मिल रहा है, तो यंगस्टर के लिए ये सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट होगी कि आप पाकिस्तान टीम में इस सीरीज़ में परफॉर्मेंस की वजह से जगह बनाएं? देखिए ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वैसे भी अगर देखा जाए, और इंशाल्लाह हमने इस पे बहुत मेहनत की हुई है, हमने बहुत काम किया हुआ है, हम इंशाल्लाह ये सीरीज़ जीतेंगे और आगे अगर देखें वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे जाती हैं और हम पहले हमारा ये है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये जो छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए हैं इन पे हम अच्छा काम करें और आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे. लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप. आगे सीनियर टीम की तो अभी बात थोड़ी आगे है. You can ask questions. Mika, as a captain of South African women's cricket team, what message have you shared with your teammates before touring Pakistan? Because this is your maiden tour. Thank you for the question. Firstly, it is our first tour to a like subcontinent country, and as a group, like we've got a lot of young players, and it's there's a few players it's the first time out of the country. So I think the key message for us in our preparations leading up to this tour was just to enjoy it as much as possible and take as much as we can out of each training session and each game ahead of the World Cup. Hi, welcome to Pakistan. Thank you. My question is how you are planning to adapt to condition and weather and pitches in Pakistan? Obviously, it's not easy to connect straight into the conditions, but we've had 2 training sessions to get a feel of the wicket, get a feel of the conditions. It's obviously a lot hotter here than in South Africa, but I think the girls have been adapting well, we've been hydrating well, so I think it's just how do we take that forward and we learn as the games go on. फिजा, आप काफ़ी टाइम से यहाँ प्रैक्टिस भी कर रही हैं अपनी टीम, कितना कॉन्फिडेंट है यहाँ पर, क्योंकि वुमेंस टीम भी जो है यहाँ पर खेली उसमें भी काफ़ी कॉन्फिडेंस था और अब आप लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस है आप पे अपनी कप्तानी पे और टीम पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और देखें हमारे लिए तो ये होम सीरीज़ है तो हमें एक ये भी मिलेगा एडवांटेज और इंशाल्लाह मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट अपनी टीम अगर मैं टीम को देखूं और ईच एंड एवरी प्लेयर हैज़ परफॉर्म रियली वेल इन द कैंप इन द प्री सीरीज और जो भी मैचेस हैं हमने सिनेरियो खेला है या जो भी खेला है
अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत अच्छा किया है और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी टीम के साथ। और कोचेज़ ने बहुत हम पे मेहनत की है, ईच एंड एवरी सिंगल प्लेयर उन्होंने हर किसी का देखा है किस पे क्या चीज़ काम करना है और किस पे क्या बॉलर है बैटर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिटनेस पे भी बहुत काम किया है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जुबैर एक्सप्रेस न्यूज़ से ताल्लुक़ है मेरा, आपसे क्वेश्चन ये है कि हमने देखा कि सीनियर टीम में फातिमा साना एक मॉडल रोल के तौर पे ऊपर सामने आई है, कैप्टनसी देख लें या उनकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बैटिंग बॉलिंग जो भी है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो नई लड़कियां आ रही हैं अंडर 19 की, वो उनको अपना रोल मॉडल समझती हैं और क्या आप लोग उस चीज़ को करेंगी, स्पेशली आप टॉकिंग अबाउट यू कि आप उस तरह से लीड कर पाएंगी टीम को? थैंक यू जी, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि देखिए इंसान सीखता है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरा ही फर्स्ट टाइम है एज अ कैप्टन और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है और इंशाल्लाह आगे मज़ीद सीखेंगे और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अपनी पूरी कि मैं टीम को अच्छे से लीड करूँ, अच्छे से हम जितना हो सके टीम का साथ दूँ और जीतेंगे इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह। That's good. Amika, I'd like to ask you a question regarding series. How much you are excited over here in the weather conditions and of course you have been observing opponent players in the field when you were in the practice session. It's my observation that it is a very big difference between both teams. I don't want to say, but I would say that South African, they were looking in better physical shape. So how would you compare both? Anyway, how will you compare the both teams in the series? Firstly, thank you for the question. We are extremely excited. I think as a group, this is the most energy I've seen in a group that we've had before, and we're really connected as a group so far. And I think with the opposition, we in our training sessions we are pretty focused on what we want to get out of it. We're not really focusing on what they are doing. But I think it's hard to compare the two teams because it's a different. Everyone has different skills and different things that makes them good. So I think it's going to be a really good battle on the field. Anybody else? बांग्लादेश वर्सेस सीरीज में आपकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही और उसके बाद पहली दफ़ा आप कौमी टीम की क़यादत भी कर रही हैं, तो कहाँ पर आपको अभी तक कमज़ोरियाँ नज़र आई हैं जिसको दूर करने की कोशिश करेंगे इस टीम में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मेरे मुताबिक तो हमारी टीम बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि हमें किसी जगह कमज़ोरी है या कुछ भी ऐसा वैसा। हम बहुत कॉन्फिडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत मेहनत की हुई है। हम जब से बांग्लादेश सीरीज़ हमने खेली हुई है उसके बाद से हम इसी प्रिपरेशन में देखिए हमारा मेन फोकस है वर्ल्ड कप और एशिया कप, ठीक है, तो हम मतलब ये हमारे लिए एडवांटेज है कि हम इस तरह की सीरीज़ खेलें और अपना कॉन्फिडेंस गेन करें। हार जीत इज़ अ पार्ट ऑफ गेम बट हमारा मेन फोकस अच्छी क्रिकेट खेलना है, तो इंशाल्लाह हम वही खेलेंगे और आपको इंशाल्लाह नज़र भी आएगा। फिजा, एक ख़ास तौर पर एक कमी नज़र आती है हमें वुमेंस क्रिकेट के अंदर कि पावर हिटिंग नहीं है। ये हमारी मेन टीम भी है, उसमें भी पावर हिटिंग नहीं होती और जो सिक्सेस और फोर्स की जो है ना बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो हमारी ये अंडर 19 टीम में आप समझती हैं कि ये पावर हिटिंग है या इसको अभी से आप इम्प्रूव करें ताकि हमारे स्ट्राइक रेट और पावर हिटिंग का जो इशूज़ चला आ रहा है वो आगे मुस्तकबिल में हमें ना हो फ्यूचर? इंशाल्लाह ये आपको देख के पता चलेगा। मैं आपको यकीन से बता सकती हूँ कि हमारी जो टीम है इस टाइम इंशाल्लाह वो आपको एक पॉजिटिव साइन, आपको पॉजिटिव चीज़ मिलेगी। उनमें पावर हिटिंग है, उनमें हर चीज़, स्ट्राइक रोटेशन, उनकी हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, हमने हर चीज़ पे काम किया। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा है कि आपको पावर हिटिंग भी देखने को मिलेगी। Mika, if you get a chance to meet a Pakistan men's cricket team player, what will be the options if you know any names? Pakistan men's cricket team superstars. If you get a chance to meet. Probably, I think it's hard to go past Babar Azam. Or Shaheen Shah Afridi. Anybody else? जी जी सर। आजकल मॉडर्न क्रिकेट में बहुत ज़्यादा जारहाना
खेली जा रही है, क्या आपकी जो टीम है वो हरियाणा क्रिकेट खेलेगी या पिच को देखकर एक मेथड अपनाएगी? देखिए ज़ाहिर है पिच कंडीशंस तो देखनी पड़ती हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि जहाँ हरियाणा बैटिंग की जाए, क्योंकि हमने इस चीज़ पे काफ़ी काम किया है। तो इंशाल्लाह पहले पिच देखेंगे, लेकिन आई थिंक इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू प्रूव आवरसेल्व्स। फिजा, आपसे क्वेश्चन ये है कि हमने ऑब्जर्व किया है हमारी नेशनल टीम हो या वीमेन टीम हो, वीमेन टीम की हम बात करते हैं, जिम्बाब्वे जब आया तो यहाँ पर बड़े रिकॉर्ड्स बने, बैटिंग हुई है जनाब, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ के विकेटों पे हम जाते हैं तो ज़ाहिर आप देखते हैं कि टोटली डिफरेंट कंडीशन होती हैं और डिफरेंट सिचुएशन आती है और डिफरेंट रिजल्ट सामने आते हैं। तो ज़ाहिर जब साउथ अफ्रीका आया हुआ है तो आपकी स्पिनर्स का फोकस होगा, कराची विकेट तो वैसे भी मशहूर है स्पिनर्स के लिए, लेकिन आप किस हद तक फोकस करेंगे जब आपको ज़ाहिर है कि एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, बड़ी टीमों के अगेंस्ट जाके आपकी खेलना है, तो वहाँ पर आपकी फास्ट बॉलर्स और कुछ आप हाईलाइट कर पाएंगे कि कौन सी प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आपका फोकस है और जिन पर आप डिपेंड करेंगी? थैंक यू। देखिए एज अ कैप्टन अगर मैं देखूँ तो मेनली तो सारे इक्वल हैं, मैं कोई एक नाम या दो नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मेनली तो टीम सारी ही मैटर करती है, इक्वल ही टीम है मेरे लिए, तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो इक्वल हैं और सब आपको इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और सब आपको अच्छी पॉजिटिव साइंस। सेम क्वेश्चन यू नीड टू गिव द आंसर। मेरा क्वेश्चन ये स्पिन विकेटों की बात कर रहा हूँ मैं कि आप पाकिस्तान में जब खेलते हैं, सीनियर टीम का भी यही हाल हुआ कि स्पिन से तो आप जीत जाते हैं, एडॉक बेसिस के ऊपर होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ज़ाहिर है कि फास्ट विकेट होती हैं, ग्रीन विकेट्स होती हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? थैंक यू। देखिए जब वहाँ खेलेंगे तो फिर आपको बताएंगे, अभी मैंने पाकिस्तान में खेला है। थैंक यू। Thank you so much. Thank you.